Good morning, students. Today we are going to discuss our last chapter of the book, that is the wind and wind speed. Chapter is the wind and storm. Today we will discuss wind speed. How can we measure the wind speed? So there are a number of natural calamities. Natural calamities due to which we face a lot of damage by storm, by flood, by earthquake. These are natural calamities or disasters. Natural disasters. Got it? The a number of air, the problems related with the air. Actually, how the wind is blowing. What is wind? So we can say blowing air or moving air is called wind. Moving air, moving air or blowing air is called as wind. बच्चों विंड धीरे धीरे चले तो बड़ी प्लेजेंट होती है. जैसे अभी राइट नाउ अभी का जो मॉर्निंग का टाइम है, अभी तो नहीं जा रहा मैं, अदरवाइज लास्ट टाइम यही टाइम रहा होगा. और उस टाइम पर मैं लास्ट ईयर आई जनरली कम टू दी. अरे यार अभी मैं मैसेजेस का कब से वेट कर रहा हूँ यार. I generally come to stadium and stadium about 5:30. Time about 5 to 5:30. और उस टाइम पर सवेरे 5 बजे, 5 से 5:30 बजे के आसपास जब एक राउंड लगा लेता और सेकंड राउंड के लिए तैयारी करता, जैसे ही बच्चों एक राउंड कंप्लीट होता स्टेडियम का, जितना भी मैंने पहन रखा होता, जैसे ब्लेजर, ये स्वेटर पहन रखा है, ये स्वेटर ऐसे करके खुल जाता, ये खुल गया ऐसे, ये स्वेटर खोल के वहां रख देता. जैसे टाइम हुआ नहीं, ये स्वेटर खोला और खोल करके रख दिया, खुल गया स्वेटर पहले राउंड में ही. फिर और जब सेकंड राउंड होता तो यहां ऐसे ऐसे पूरा पसीना पसीना निकल जाता, पूरा का पूरा पसीना निकलने लग जाता, पूरी बॉडी से स्वेटिंग करने लग जाते. और उस टाइम पर फिर ठंडी ठंडी हवा, लोगों के लिए ठंडी हवा है, लेकिन जो मॉर्निंग की ठंडी हवा है अब उस टाइम पे इतनी प्लेजेंट लगती जिसकी हद नहीं. सो लुक इन योर बुक एट फर्स्ट. Air, water and land are valuable natural resources. बच्चों, what do you mean by resources? All the things, everything, everything which is beneficial to us, everything which is beneficial to us known as resources. क्या कहेंगे इसको हम लोग? रिसोर्स. तो एयर, water, sunlight, soil, these are the natural resources. Oil, petroleum, coal, these are the natural resources. Air, water, land are valuable natural resources, and even though man utilities utilize them for his needs, नेचर इज नॉट ओनली कंप्लीट अंडर हिज कंट्रोल. और जो हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो एंटायर नेचर बिकम्स अंडर आवर कंट्रोल. पूरी की पूरी नेचर हमारे कंट्रोल में आ गई है, लेकिन कंट्रोल में नहीं, ऐसा सोचना गलत है.
वी कांट कंट्रोल नेचर, नेचर कंट्रोल अस। नेचर हमको कंट्रोल करती है, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस टाइम पर ह्यूमन बींग्स ये मानने लग जाते हैं आई कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स, बस वहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड इट कोजेस अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जहां देखो वहीं पर हमने सारे फॉरेस्ट बर्बाद कर दिए हैं, जहां देखो वहां पर पूरी नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। चाहे ओशंस हो, चाहे सीज हो, चाहे लेक्स हो, चाहे हमारी एयर हो, लेकिन वी आर नॉट बिगर देन दी नेचर। नेचर जब चाहे हमको पटकनी दे सकती है। अभी दिया ना कोरोना के केस में, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स बिकम्स स्टैंड बाय, पूरी की पूरी दुनिया स्टैंड बाय हो गई, रुक गई, थम गई। नेचुरल फोर्सेज आर केपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ, बट दे आर केपेबल ऑफ causing widespread destruction of life and properties. It can cause widespread destruction of life and property. Damage caused by uncontrolled forces of nature may result in the natural disasters or natural calamities. So, what is definition of the natural calamities? Look in your book, that is given in your book. A physical phenomena which causes injury or loss of life and damage to property. दोबारा सुने, a physical phenomena which causes injury or loss of life and damage to the property is called as natural disaster or natural calamity. Some of the frequently occurring natural calamities are thunderstorm, बिजली कड़कना, cyclones, tornadoes. बच्चों, we are living in Rajasthan. We are not aware about the storms, tornadoes, cyclones, but the people living at the coastal regions, Bombay, Chennai, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, I can say, Bhubaneswar, or even you can say Odisha, West Bengal. These places generally suffering from cyclones, and they generally suffer from cyclones, tornadoes every year. कभी इसका नाम हो जाता है हुडहुड, कभी हो जाता है इसका नाम छबीली, कभी हो जाता है इसका नाम क्या था अभी जो होके गया फाइलिन। तो इसके नाम जो हैं कई अलग अलग नाम, हर साल इसके नाम डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दीज साइक्लोन्स. These cyclones are strong winds. These cyclones are strong winds. और ये strong winds arise कहाँ से होती है? From the oceans. These strong winds arise from the oceans. To understand these calamities, one by one we will study. So first, wind. You must have felt that wind can sometimes be very gentle and pleasing. मजा आता है जब तक हवा नहीं चलेगी पतंग कैसे उड़ाएंगे? हवा चलेगी तो पतंग उड़ेगी, वरना पतंग नहीं उड़ेगी, हवा ही नहीं चल रही. Sometimes very strong and violent. Wind has certain terms associated with it, as discussed below. Wind direction. The direction of wind is known as wind direction. Wind direction in which the wind originates. For example, northerly wind blows from the north to south. बच्चों इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? विंड वेन कर दो या वेदर वेन कर दो.
an instrument which is known as weather vane or wind vane. An instrument weather vane or wind vane is used to find the direction of the wind. क्या करते हैं बच्चों? सिंपल 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 क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक विंड वेन बनाना बहुत इजी काम है। क्या करेंगे, ये सिंपल एक नीचे ऐसे रोटेट, एक ऐसा लकड़ी ले लें जिसके जो फ्रीली मूवमेंट कर सके, जो फ्रीली मूवमेंट हो सके जिसका। ये देखो ट्रक के ऊपर देखा होगा, ट्रकों के ऊपर जो हमारे लोडिंग व्हीकल्स आते हैं, गुड्स व्हीकल, उनके ऊपर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। दिस इज दी विंड वेन, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। गाड़ी चलेगी वो घूमता रहेगा। इट आइडेंटिफाई, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द विंड। बच्चों, विंड वेन इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। मार्क इट, अंडरलाइन व्हाट इज विंड वेन। जैसे हम कहते हैं थर्मोमीटर, व्हाट इज थर्मोमीटर। कैन यू राइट नेचुरल डिजास्टर डेफिनेशन ऑन बोर्ड? यस, बोर्ड में लिख देंगे, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ बेटा। लुक पेज नंबर 195, डेफिनेशन अलग से लिखा हुआ है। सो टू ऑब्टेन द एक्यूरेट रीडिंग, to obtain the accurate reading the weather vane or wind vane must be located well above the ground। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा जमीन से ऊपर लगा देंगे। नीचे लगेगा तो क्या होगा, दीवार से हवा टकराएगी और ये वापस आएगा, और दीवार से हवा टकरा के वापस आएगी तो हमको राइट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। तो कहां रखे, खुले में लगा देंगे इसको। It must be located well above the ground and away from building, trees or other objects which interfere with true wind direction। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हवा टकराती है, दीवार से टकराती है और दीवार से टकरा कर वापस हवा आती है। The wind vane has two parts, a pointed front part, yes, look here, like this, a pointed front part and broad rear part। जो पीछे वाला पार्ट होता है रियर पार्ट, और उसमें थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और वो ही हमारे इस आगे वाले एरो को डायरेक्ट करता है। यही हमारे इस एरो को डायरेक्ट करता है। The front part consists of an arrow with points and showing the direction of wind. This setup is mounted on a vertical column such that it moves freely with wind flows। ये देखो आप लोग कैसे बना सकते हो। Look here, how to make the wind vane। Activity 1, you take a plastic box covered with a colored sheet, drinking straw, pencil। अब पेंसिल कैसे होनी चाहिए, शार्प पॉइंटेड होनी चाहिए, ताकि वो ऐसे हम उसको पेंसिल को ऐसे कर देंगे, तो जब पेंसिल को ऐसे कर देंगे तो वो रोटेट करेगी ऐसे ऐसे। गॉट इट? सो लुक हियर, मैग्नेटिक कंपास। तो देखिए बच्चों, टेक अ प्लास्टिक बॉक्स एंड इंसर्ट अ शार्प साइड ऑफ द पेंसिल in it and making a hole in the sharp object। प्लास्टिक बॉक्स के अंदर हमने यहां पर पेंसिल को फंसा दिया। प्लेस द बॉक्स अपसाइड एंड यूज मॉडलिंग क्ले टू फिक्स द सरफेस। मॉडलिंग क्ले को यूज कर लेंगे उसको चिपकाने के लिए, जो हमारी प्लास्टिक बॉक्स है उसको। कट अ कलर शीट into 2 big or 2 small triangles, 4 small triangles। Fix the triangle, अब ट्राइंगल को आपस में चिपका देंगे। Fix small triangles on the box, जैसे बुक में दिया हुआ है, as a diagram is given।
उसको चिपका देंगे। जो हमारी पेंसिल बॉक्स है ना, पेंसिल के जो पेंसिल पे जैसे दिया हुआ वैसे उसको चिपका देंगे एक स्टिक लेकर के। फिक्स स्मॉल ट्राइंगल्स ऑन द बॉक्स, मार्क देम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, टेक अ स्ट्रो। अब जो स्ट्रो है, स्ट्रो के ऊपर दोनों को चिपका देंगे हम लोग, दो ट्राइंगल्स को, दो नहीं चार है ना, तो दो स्ट्रो लेनी पड़ेगी, एक स्ट्रो ऐसे क्रॉस में इस टाइप से। टेक अ स्ट्रो एंड स्लिट each end and insert one of the large triangle in the slit of to make an arrow shape. Push the thumb pin, यहाँ पर thumb pin लगा देंगे। Push the thumb pins into the eraser head to the of the pencil। अब पेंसिल में ऐसे इरेजर फंसा कर ऊपर लगा देंगे। Make sure straw rotates freely on the pencil। पेंसिल का पॉइंटेड पार्ट यहाँ पर रहेगा और ये स्ट्रो ऐसे रहेगा, स्ट्रो यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमेगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल जो होती है, पेंसिल इतना सा तो पार्ट, इतना बारीक सा तो पार्ट वहां पर नीचे टच है, तो वो फ्रीली इट कैन मूव फ्रीली। अब जैसे फ्रीली मूव करेगा तो हम उसको, उसकी डायरेक्शन हम लोग अब कहाँ पर मूव कर रहा है, विच वन इज नॉर्थ, विच वन इज साउथ, हाउ कैन वी डिटरमाइन? बाय यूजिंग दी कंपास। कंपास यूज करके ईस्ट वेस्ट को, सॉरी नॉर्थ साउथ को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और बाकी डायरेक्शन यू नो वेल। इन दिस वे एक सिंपल प्लास्टिक बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर स्ट्रो रख दिया, ये स्ट्रो रख दिया, सॉरी पहले पेंसिल रख दिया, पेंसिल को ऐसे पॉइंटेड वाला, मेरे पास पेंसिल है ये, लुक हियर, ये प्लास्टिक बॉक्स, पेंसिल इसके ऊपर रख दिया ये ऐसे। अब यहाँ पर स्ट्रो को फंसा दिया ये ऐसे, ये स्ट्रो ऐसे हो गई। अब जब स्ट्रो हो गई, अब यहाँ पर स्ट्रो के एक साइड पर एरो बना दिया, एक यहाँ पर भी वो बन गया, ट्राइंगल फंसा दिया। अब ये ऐसे ऐसे फ्री मूव करेगा, ये ऐसे 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 मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे, एंड दिस वे इट विल मूव, राइट? दिस इज द विंड वैन। बच्चों ये जितना तेजी से घूमेगा, इट विल शो विंड वेलोसिटी, इट विल शो विंड वेलोसिटी। और विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एनीमोमीटर। The instrument which is used to measure the speed of wind velocity is known as anemometer. So look here, wind velocity in the speed is the speed which wind blows in a particular direction. Wind velocity, the speed of the wind by which it blows in a particular direction. The wind speed is measured in the or represent in the kilometer per hour। हमारी गाड़ी चलती है, किस में निकालते हैं हम लोग? किलोमीटर पर आवर। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर पर आवर। एट द स्पीड 10 to 20 किलोमीटर पर आवर, विंड इज फेल्ट कंफर्टेबल ब्रीज। क्या कहते हैं इसको? कंफर्टेबल ब्रीज। ये देखो चार्ट नीचे दिया हुआ है। ड्यूरिंग वायलेंट स्टॉर्म विंड स्पीड में बी exceed from the 100 kilometer per hour। So look chart, speed 0 to 1 kilometer per hour, calm air। क्या कहते हैं? हवा शांत है। 6 to 11 light breeze, हल्की हल्की हवा चल रही है, light breeze। 20-29 moderate breeze, this is called as moderate breeze। 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग ब्रीज। 51 to 60 मॉडरेट विंड और स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स। 60 to 74 और मोर देन 100, दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है बच्चों,